اچھا پروردگار یہ بتا کہ یہ جو تیرا قرآن ہے یہ زمین سے پیدا ہوا ہے یا آسمان سے نازل ہوا ہے؟ فرمایا اسی آیت میں پڑھ، نزل نزل، ترجمہ کرو جی، نزل نزل، نازل ہوا ہے۔ اچھا مالک نازل ہوا ہے تو یہ بتا چاچا جی، پتر بیٹا شور آ رہا ہے، بیٹا شور آ رہا ہے، یہاں تو جتنے بچے ہیں سائڈ پہ کر دو بیٹا، یا مائلس کے اندر آئے یا پھر پیچھے ہٹ جائیں تاکہ شور نہ آئے۔ اچھا مالک نازل ہوا ہے، نازل ہوا ہے؟ فرمایا ہاں۔ ایک بار اچھی بول کے تو سنا، سال چ کنے مہینے ہوندے نے؟ آواز کوئی نہیں آئی پا جی، لائٹ کے پیچھے والا بھائی کتنے مہینے؟ 12 مہینے۔ چاچا جی 12 مہینے ہے نا؟ اب چاچا جی سوال یہ ہے، اللہ تو جو کہتا ہے کہ قرآن نازل ہوا ہے یہ بتا محرم میں آیا، سفر میں آیا، ربیع الاول میں آیا، ربیع الثانی میں آیا، جمادی الاولیٰ میں آیا، جمادی الثانیہ میں آیا، رجب میں آیا، شعبان میں میرا پتر ہے، کب قرآن آیا؟ قرآن کہتا ہے پڑھ قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ چاچا جی مہربانی فرمایا ہم نے اسے ماہ مبارک کے رمضان میں نازل کیا۔ پروردگار رمضان میں دن بھی ہیں راتیں بھی ہیں، یہ بتا دن کو نازل ہوا یا رات کو نازل ہوا؟ میں پڑھ قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اسے ایک مبارک رات میں نازل کیا۔ پروردگار یہ جس رات کا نام مبارک ہے اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ فرمایا پڑھ قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کا نام لیلۃ القدر رکھا ہے۔ پروردگار یہ جو لیلۃ القدر ہے اس کی اپنی قدر کیا ہے؟ ہائے ہائے، سارے بھائی زبان سے، بھائی زبان سے سارے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائی، بسم اللہ بیٹا، شاہ بھائی پتر، میرے بھائیوں یہ جو حسین کا ذکر ہے نا یہ کوئی تماشا نہیں ہے، یہ کوئی فساد نہیں ہے، یہ کسی کی دلداری نہیں ہے، یہ تو ہم محمد والے محمد کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں قرآن سے، ہم نعتیں پڑھتے ہیں، رسول کی شان پڑھیں گے، آل رسول کی شان پڑھیں گے اور قرآن سے پڑھیں گے، کسی کی یہاں دلداری نہیں ہوگی، کسی مسئلے کی یہاں توہین نہیں ہوگی، بڑے پیار سے یہاں قرآن اور حسین کا پیغام دیا جائے گا، آپ مطمئن ہو کے بیٹھیے۔ پروردگار کب آیا قرآن؟ فرمایا رمضان میں۔ رمضان نہیں کہنا، رمضان، کیا؟ سارے بولے کیا بتر؟ شاباش بیٹا، رمضان غلط ہے، رمضان میں آیا اور رات میں آیا، مبارک رات میں آیا جس کا نام لیلۃ القدر ہے۔ پروردگار یہ بتا انکل جی کہ یہ لیلۃ القدر ہے بھائی جان اس کی اپنی قدر کیا ہے؟ میں پڑھ قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ بھائی معصوم بچوں پتر، جب میں آپ جتنا تھا، ہمارے پنڈ کا نام ہے کوٹ شاہ، گجرانوالہ میں کوٹ شاہ پنڈ ہے، تو میں بھی آپ کی طرح یہ ایسے بیٹھتا تھا مجلس میں اور ذاکر کو یا مولوی کو یا طالب علم کو میں بھی سنتا تھا۔ چاچا جی شروع سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ لیلۃ القدر، اور جڑے سنی پر آ بیٹھے ہو 27ویں دی رات، ٹھیک ہے، اور جو شیعہ بھائی ہیں وہ 19، 21 اور 23 کو مناتے ہیں لیلۃ القدر، یعنی طاق رات ہوتی ہے آخری عشرے میں جب قرآن نازل ہوا پتر۔ تو جب ہم سنتے تھے نا مولویوں سے، شیعہ سنی مولویوں سے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، بس یہی نہیں سن رہے سب۔ ایک مرتبہ کل بھائی میں نے سوچا، چاچا جی میں نے سوچا کہ کیوں نہ گنا جائے کہ یہ عرصہ بندہ کن ہے؟ بھائی میں نے نکال لیا، میں نے نچوڑ نکال لیا، بھائی یہ بنتا ہے 83 سال اور کچھ مہینے، یعنی بندہ شاید رومال ادھر ہے، بندہ 83-84 سال، میرا پتر چھوٹے بچوں 83-84 سال بندہ مصلی عبادت بچھا کے اللہ کی عبادت کرے، وہ ایک طرف، اور اگر ایک رات، جس رات میں بھائی قرآن نازل ہوا، وہ ایک رات کی عبادت ایک طرف۔ سنی بھائی بعد میں مجھ سے پوچھ لیجیے گا، جو شیعہ بھائی بیٹھے ہیں آپ چپ رہے، مجھے دکھ ہوگا، میں نے تفاسیر آل محمد کو کھولا، قرآن کے چھٹے وارث سے پوچھا، مولا اتنا بینیفٹ، اتنا پرافٹ، اتنا منافع کہ رات ایک اور ثواب 83 سالوں کا، امام کے والد تو کیا سمجھتا ہے کہ وہ فقط ایک رات ہے؟ نہیں، لیلۃ القدر اصل میں میری دادی زہرا کا نام ہے۔ آئے داری بھائی، مالک آپ کو سلام سے، آئے داری، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا جس رات میں بیٹا جس رات میں پتر میرے نے دیکھنا ہے، جس رات میں قرآن آیا وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اچھا پروردگار، ابھی ہم نے تجھ سے پوچھا کہ قرآن پیدا ہوا ہے کہ نازل ہوا ہے، اور تو نے کہا تھا نازل ہوا ہے۔ جو معصوم بچے ہیں بیٹا توجہ سنیے پتر، یہ ہے ایک رومال ہے نا پتر، یہ پڑھا، اب دیکھیے پتر، اسے کہتے ہیں صعود، عربی میں صعود، چڑھنا، ٹھیک ہے پتر، اور
اسے کہتے ہیں نزول، یعنی اتوں تھلے آنا. انہوں کیا کیتا ہے؟ شاباش، نازل ہونا. پروردگار تو کہتا ہے کہ قرآن نازل ہوا ہے یعنی اتوں. تو پروردگار یہ بتا خود بخود قرآن اڑتا ہوا آیا ہے یا اسے کوئی لایا تھا؟ فرمایا پڑھ قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نزل بہ الروح الامین. ہم نے اسے جبریل کے ذریعے نازل کیا. چھوٹے پتر نہ جبرائیل کہنا ہے نہ جبریل کہنا ہے، لفظ ہے پتر جبریل. کیا لفظ ہے یار؟ سارے اونچی بولو، کیا لفظ ہے؟ ہر شیعہ بچے کا یہ تلفظ صحیح ہونا چاہیے، لفظ جبریل. کس لیے؟ کہ یہ قرآن لایا تھا. دوسرا اس لیے کہ یہ میرے مولا علی کا شاگرد ہے، اور تیسرا اس لیے کہ یہ حسین کا درزی ہے. شاباش بیٹا، بڑے اچھے بچے ہیں. بھائی آپ کے تو مالک آپ کو سلامت رکھے. آپ کے محلے کے بچے اتنے پیار سے نہ شرارتیں کر رہے ہیں اور نہ کوئی ہوٹنگ کر رہے ہیں، بڑے اطمینان سن بھی رہے ہیں اور مولا کا نعرہ بھی لگا رہے ہیں. اللہ قرآن پاک کے صدقے میں آپ کی زندگیاں دراز فرمائے. اچھا تو کہا کہ مالک کیسے آیا قرآن؟ فرمایا نزل بہ الروح الامین. ہم نے اسے جبریل کے ذریعے بھیجا. جتنے بھائیوں پہ لائٹ پڑ رہی ہے نا ان کے تو مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں، جو لائٹ کے پیچھے ذرا ان کے چہرے نظر نہیں آ رہے. میری آنکھ اس قابل نہیں ہے کہ میں اندھیرے میں بھی دیکھ سکوں. وہ تو آپ کو پتا اور ہستیاں نا جو اندھیرے میں دیکھ لیتی ہیں، لیکن جو چپ ہے نا ذرا ان کو بلا رہا ہوں. حضرات ایک ضروری اعلان سنیے. قرآن لانے والا حضرت جبریل رضی اللہ تعالی عنہ ہے. غلطی ہو گئی، سوری. ٹھیک ہے، آخر انسان ہے قلب بھائی، اور انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. تو جب بھی غلطی ہو جائے معافی مانگ لینی چاہیے بھائی. تو میں آئی ڈو اپالوجائز، ویری ویری سوری. میں ممبر پہ مائک پہ منہ رکھ کے کیمرے کے سامنے کہتا ہوں پاجی غلطی ہو گئی، معاف کر دیو. میرے منہ سے کیا نکلا؟ جبریل. نوجوان بھائی مجھے کہنا کیا چاہیے تھا؟ پاجی پھر حق بنتا ہے نا. پھر مولوی صاحب کہتے ہیں کافر کافر شیعہ کافر. مولوی صاحب کیوں؟ مولوی صاحب قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے جب قرآن لانے والا علیہ السلام ہے، بچانے والا رضی اللہ کیسے ہو جائے گا؟ انکل جی مالک آپ کو سلامت رکھے. بھائی بہت بہت شکریہ بھائیو. نوجوانوں جب لائٹ پڑی ہے دیکھیں کتنے پیارے پیارے چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ چھپ کے بیٹھے ہیں، پیچھے بیٹھے ہیں. یہ زیادتی ہے. آپ پوچھے کہ آگے آ جائیں، لیکن چلیں ابھی ماحول خراب نہ ہو. مالک آپ کو سلامت رکھے. میرے کیمرے والے بھائی سے گزارش ہے کہ کیمرہ بار بار نہ گھمائیں، چونکہ پھر رکا ہی نہیں رہا پایا ہے. تو مہربانی ایک پاس رکھو تاکہ میں جلدی جلدی تھوڑے ٹائم میں زیادہ قرآن آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. حسین مبلغ قرآن ہے، اس لیے حسین کی مجلس میں قرآن پڑھا جانا چاہیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اچھا مالک کون لایا؟ میں جبریل. نازل بہ الروح الامین. ہم نے اسے جبریل علیہ السلام کے ذریعے بھیجا. پروردگار بھائی توجہ، پروردگار میرے لئے دیکھا جائے اللہ مالک گاڈ. پروردگار تیرے پاس تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لا تعداد فرشتے ہیں، مکدے ہی نہیں. قرآن کے لیے جبریل کیوں؟ جنہوں سمجھ آئے کنجوسی نہ کرے. اللہ کی آواز آئی چپ. قرآن میں طاقت اتنی ہے کسی چھوٹے موٹے فرشتے کی اوقات کیا ہے؟ ہائے ہائے میرا پتر سمجھ آئی تھا نا، چھوٹا پتر شاباش. یہ کسی چھوٹے موٹے فرشتے کی اوقات کیا ہے کہ وہ قرآن کو چھو سکے. اس لیے ہم نے سید الملائکہ فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی. مالک سوال تو پھر پیدا ہو گیا کہ تیرے پاس اربوں خربوں فرشتے ہیں اور تم نے ڈیوٹی لگائی جبریل کی، کیوں؟ فرمایا قرآن میں طاقت ہے. تو پروردگار سوال پیدا ہو گیا کتنی طاقت ہے تیرے قرآن میں؟ کتنی طاقت ہے؟ پڑھ قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. فرما سنو میرے قرآن میں اتنی طاقت ہے، اگر ہم اسے کسی پہاڑ پہ نازل کرتے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ پتر، چھوٹے پتر ریزہ ریزہ یعنی چورا چورا، کاڑے لون کی طرح، میدے کی طرح، آٹے کی طرح، مٹی کی طرح پتر، ریت کی طرح ہو جاتا پہاڑ. کیوں؟ قرآن میں طاقت اتنی ہے چھوٹے پتر کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. جتنے بچے بیٹھے ہو پتر آپ مجھے بتائیں گے پہاڑ لینڈن کا ہوتا ہے پلاسٹک کا؟ شاباش شاباش پتر اچھی بول. کس کا؟ میں کہا معصوم بچہ نہیں. وہ کہہ رہا جی ایک پتھر کا ہوتا ہے. لو جی جڑا جڑا بندہ تھکیا نہیں میرے انگنا، میں تھکیا مکا بیٹھا، جڑے فریش بیٹھے ہو تسی بولا جی بچہ. بھائی جان بچہ کہہ رہا ہے کہ چاچو جی پہاڑ پتھر کا ہے. تو یار تسی بولے ہی نہیں. قرآن کہتا ہے میری علامت یہ ہے میں جب بھی پتھر پہ آتا ہوں نا میں پتھر کو توڑ دیتا ہوں، چاہے 21 رمضان ہو یا 13 رجب ہو.
सदके जाओ हैदरी, अल्लाह आपको सलामत करे। मेरा पुत्र जी सदके या अली, हुण पता लगा जी पुत्र जी में हुण बेटा पता लगा जी 13 रजब को दीवार पत्थर की क्यों टूटी थी? क्योंकि वहां भी एक नात के कुरान आया था, है वो गाजी का पाक बाबा अली था जो पहला नात के कुरान है। अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा परवरदिगार क्या कहा? कुरान में ताकत इतनी है पहाड़ भी नहीं उठा सकता। मालिक हमारे ग्लोबल विलेज में, पूरी कायनात में, भाई मैं 7-8 मुल्कों में तो मैं भी गया हूँ, अबू धाबी गया हूँ, कतर गया हूँ, इंग्लैंड गया हूँ, मदीना गया हूँ, इराक गया हूँ, शाम गया हूँ, कई मुल्कों में मैं भी गया हूँ। तो मैंने सबसे जाके यही पूछा, तो सारे कहते हैं कि ये जो लफ्ज़ पहाड़ ना भाईजान, पहाड़ भाईजान ये ताकत की अलामत है। मसलन बंदा कहता है ओ यार फलां चौधरी साहब, ओ यार वो ते सखावत दे पहाड़ ने, यार फलां शाह साहब, यार वो ते अजादारी दे पहाड़ ने, यार फलां जाकिर साहब, यार वो तो मसाइब का पहाड़ है, यार फलां मौलवी साहब, यार वो तो फजाइल का पहाड़ है। इसका मतलब है हम लफ्ज़ पहाड़ इस्तेमाल करते हैं पुत्र ताकत के लिए, कुव्वत के लिए। साढ़े को इस तो उत्ते लफ्ज़ ही कोई नहीं, सबसे बड़ा ताकत का लफ्ज़ यार है बंदा सबर दा पहाड़ है। इसका मतलब है लफ्ज़ पहाड़ से बड़ी चीज़ ताकत के लिए हमारे माशरे में यूज ही नहीं होती। परवरदिगार वो पहाड़ जो ताकत की अलामत है तू प्यान है वो ही इन्ने जोगा नहीं कि वो कुरान को उठा सके। तो फिर ये शिया सुन्नी अद्धी रात को मिट्टी पे बैठ के तुझसे पूछते हैं फिर बता तो सही जिस कुरान को पहाड़ नहीं उठा सके उसको उठाया किसने? फरमाया पढ़ कुरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़ल बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिक। वो 2 जहां से ज्यादा ताकतवर हुसैन के नाने का दिल है। सदके जावा भाई, मालिक आपको सलामत रखे। वो 2 जहां, सदके जावा भाई, वो 2 जहां, मैं 5 मिनट पढ़ूं या 5 घंटे ना मैं साह लेना है ना। हाँ तो अगर आप थक जाएंगे तो फिर मैं छोड़ दूंगा, और अगर आपकी आवाज सही सही आएगी फिर मैं और पढ़ूंगा। अच्छा तो पहाड़ जिसे नहीं उठा सकते उसे उठाया हुसैन के नाने के दिल ने। इसका मतलब है मेरे मुस्तफा का दिल इतना मजबूत है कि पहाड़ ते कख भी नहीं। इतना मजबूत है मेरे मुस्तफा का कलेजा, इतना पावरफुल है हार्ट मेरे मुस्तफा का कि पहाड़ ते शय को नहीं, पहाड़ ते मेरे नबी दी जुती के बराबर भी एडा ताकतवर है हुसैन का नाना। परवरदिगार ना मुस्तफा, तू तो कहता है मेरा नबी मेरा हबीब सोना ही बड़ा है, तो सर से पांव तक तो एक एक चीज मेरे नबी की सोनी है। फिर तूने मेरे नबी के हाथ पे कुरान नहीं नाजिल किया, कोहनी पे कुरान नहीं नाजिल किया, शोल्डर पे कुरान नहीं आया, माथे पे नहीं आया, आंखों पे नहीं आया, नाक पे नहीं आया, सोने होंठों पे नहीं आया है। परवरदिगार सदफ़े अतर शिकम अतर पे नहीं आया, आया तो दिल पे आया। अब ये जुमले ऐसे हैं कि अभी दाद ना मिले नो प्रॉब्लम, ले महीने बाद समझ आए, 10 साल बाद समझ आए, फिर मुझे दाद दे देना, रिकॉर्डिंग हो रही है फिर सही, अभी थोड़ा बोलोगे तो नो प्रॉब्लम। परवरदिगार मोहम्मद के दिल पे क्यों आया? फरमाया मैं कायनात के हरामी मुल्ला की दाढ़ी पकड़ के उसके मुंह पे जूता मार के समझा रहा हूँ, जिस मोहम्मद का दिल इतना मजबूत हो उसका दिमाग इतना कमजोर नहीं होता कि हल्के बुखार में हिज़यान हो जाए। अल्लाह आपको सलामत रखे भाईजान, बंडल ऑफ थैंक्स, शुक्रिया। हैदरी बाजी एक मरतबा हर हलाली शिया या सुन्नी है दोनों हाथ उठा के मिलके ऊंचा नारा हैदरी। भाई अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। तो मेरे अजीजों मेरे भसद के जावा मेरे भाइयों कुरान कहाँ आया? मेरे मुस्तफा के दिल पे। अच्छा पहले ये बताइए जो नजर नहीं होंगे पे वो तो भी लुत्फ आया कुरान का कि नहीं है? आज सच के लाना जो आवाज आई है जी, आवाज आई है बड़ी गल भाजी तुम आंदे हो मौजमा बोल देंगे, ये तो सारा बोलता पे बड़ा सोहना मजमा है। ये कुरान की बरकत है, असल में हमारा कमाल नहीं होता, ये कुरान की बरकत है। अच्छा तो भाईजान कहा कि कुरान आया मेरे नबी के दिल पे। अच्छा मैं साथ साथ थोड़ा टाइम भी देख लूँ ताकि ज्यादती ना हो जाए, जितना मुझे भाई ने कहा है उससे मैं आगे ना बढ़ूँ। हाँ टाइम देख। मेरे अजीजों मेरे भाइयों एक मरतबा मिल के बोलेंगे कि कुरान कहाँ आया? मेरे मुस्तफ़ा के। और मैं सदके जावा, मैं सदके, अगर हम में से कोई दिल का मरीज बैठा है तो पाक रसूल के दिल का सदका अल्लाह उसे सेहत खुली दे। इस वास्ते एक बार अपने जे अपने दिल नू सही करना जे, बीमारी तो बचाना जे, तो फिर आखो कुरान आया मेरे नबी के। अल्लाह की कसम ये आखन वाले बंदा शफायाब हो जाता जे, एडा वड्डा ज़हरा दा बाबा है, ये आखन वाले बंदे दिल की बीमारी दूर हो जाती है। आप फिर आखो जी कुरान आया मेरे नबी के।
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے سیدوں کے سید، سیدوں کا سید سمجھا ہے دسا، کائنات کے سید 12 ہیں، 12 کا سید مصطفیٰ ہے۔ ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا مولوی صاحب تسی شیعہ بھی نبی پاک نو مان دے ہو؟ میں کیا اسی تو ماننے آندا کس طرح؟ میں کیا ایک کری نبی آکھیا سی من کنتا مولا، اسی اس گل تے مر چلے ہیں۔ میں کیا سی تو ماننے، کہتا ہے ایک جملہ سنا ہوں والا، ایک جملہ نبی دی شان دا، ایک جملہ تے مینوں پتہ لگ جائے تسی کنا کو ماندے ہو۔ وہ میں جملہ سنایا جی، تانوں بھی سناواں تے جڑے شیعہ ماواں دے پتر بیٹھے ہو بولو گے، تاکہ ہمارے سنی بھائی سمجھے کہ یار شیعہ بندہ بیان کر رہا ہے، سنی واقعی سارے شیعہ بولے نے، سارے شیعہ بولو گے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم میرے 15-20 سالہ کتابیں پڑھنے کے مطالعے میں اس سے بڑا فکرہ ہے ہی نہیں۔ دو جہاں کا مولا علی ہے، علی کا مولا مصطفیٰ ہے۔ صدقے جاواں حیدری، صدقے جاواں جی۔ اس وقت جنہیں شفا لینی ہے، جڑا دل دا مریض ہے اپنی بیماری دور کرنی جی، آکھو قرآن آیا میرے نبی کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ جی ہم نے اللہ سے بڑی باتیں پوچھی، 8-10 گلاں سا پوچھیاں نے، اللہ نے ایک ایک کا جواب قرآن سے دیا ہے۔ ہم نے پوچھا قرآن سچا کتنا ہے؟ اللہ کہتا ہے ذرہ برابر جھوٹ نہیں۔ قرآن میں علم کتنا ہے؟ اللہ کہتا ہے 2 جہاں کا علم ہے۔ قرآن کب آیا؟ اللہ کہتا ہے رمضان میں آیا۔ رمضان میں دن کو آیا رات کو؟ فرمایا رات کو آیا۔ کون سی رات؟ مبارک رات۔ کون سی رات؟ لیلۃ القدر والی۔ کون سی رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے؟ قرآن لایا کون؟ فرمایا جبریل۔ آیا کہاں؟ فرمایا محمد مصطفیٰ کے دل پہ۔ اس کی طاقت کتنی ہے؟ فرمایا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ دیکھ چکیا کیسے؟ فرمایا میرے نبی کے دل نے۔ پر یا رسول اللہ اساں اینیاں گلاں پوچھیاں نے اللہ کو، اللہ نے سانو سارا جواب دیتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہربانی ایک جواب تسی بھی دیو، میرے لئے وکھا جی ایک جواب تسی بھی دیو، قلب تیری دنیا پاندہ مول پہنا گئی، ایک جواب تسی بھی دیو۔ یا رسول اللہ یہ جو کائنات میں سب سے افضل کتاب قرآن ہے، یہ جو آپ کے دل پہ آیا ہے، یہ آپ کا دل کیا ہے؟ فرمایا شیعہ سنی کتاب میں پڑھ کے دیکھ، الفاطمہ تو قلبی، میرا دل زہرا ہے۔ تہاڈی کیا بات ہے؟ اللہ دی قسم ہے تسی جیو تے تسی زندہ باد ہو، قرآن دی قسم میں تانوں آنا وا واہ 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 واہ، ایڈا کمال دا مجمع، اتنا اچھا مجمع قرآن سننے والا، صدقے جاواں بھائی جان۔ فرمایا قرآن آیا مصطفیٰ کے دل پہ، سنو میرا دل زہرا ہے۔ اے پتر رسول اللہ فرماتے ہیں میرا دل میری بیٹی فاطمہ ہے۔ ہائے ہائے، اس کا مطلب ہے جو بندہ چاہتا ہے کہ قرآن اس کی شفاعت کرے کہ وہ بندہ بخشیا جائے، اسے چاہیے جناب زہرا کو سلام کرے۔ اس کا مطلب ہے جس پہ جناب سیدہ راضی ہیں اس پہ اللہ راضی ہے، اور جس پہ جناب زہرا ناراض ہے اس پہ اللہ بھی لعنت کرتا ہے، رسول بھی لعنت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کا مطلب ہے وہ جگہ، پاجی بیٹا وہ جگہ جہاں قرآن آیا وہ پاجی وہ ہے میرے محمد کا دل، اور نبی فرماتے ہیں میرے دل کی حقیقت کو زہرا کہتے ہیں۔ اینے بندے بیٹھے ہو 4-5 بندے نکی جی آواز چ ہوں ہاں کرو تو میں راضی ہوں کیونکہ جملہ اوکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ مقام جہاں قرآن آتا ہے وہ قلب مصطفیٰ کی حقیقت جناب زہرا ہے۔ یہ مطلب ہے جتھے قرآن آندا ہے، جتھے قرآن آندا ہے وہ مقام سیدہ ہے۔ آج پتہ چلا قرآن میں کیوں لکھا ہے کہ بغیر وضو مجھے ٹچ کرنا حرام ہے۔ ہائے ہائے صدقے ہائے داری بھائی خدا آپ کو سلامت رکھے۔ ایڈیاں اوکھیاں گلاں کرنا تے ایڈا سوہنا پسند ہو جی۔ او جڑے میرے ویر کیمرہ پھڑ کھلوتے تسی بھی چکو جی، اچھا نعرہ ہائے داری۔ بھائی مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ میں قرآن دی قسم میں تواڈے صدقے جاواں، واری جاواں، صدقے جاواں۔ اتنی مشکل بات ہے قرآن پڑھنا اور اتنا آپ اچھا سن رہے ہیں، 2 منٹ اور سن لو جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا بولیے سامعین محترم بولیے ذرا، جتنا مجھے بھائی جان نے کہا ہے اس سے تقریباً 15-16 منٹ رہ گئے ہیں، 2-3 منٹ اور قرآن سنیے، تھوڑا سا پھر مسائل پڑھتا ہوں اور آپ کو سلام کرتا ہوں۔ پاجی مجھے اللہ نے ایسا ٹیلنٹ دیا ہے، سادات کی دعاؤں کے صدقے میں ساری رات بھی پڑھوں تو مجمع کو پتہ نہیں چلتا 1.5-2 گھنٹہ گیا کتنے میں۔ یہ اللہ کی عطا ہے۔ میں بار بار ٹائم اس لیے گنجائش کر رہا ہوں تاکہ چھیتی جان چھوڑ جائے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرا دل کر رہا تھا میں آپ کی نوکری کروں، لیکن مجھے بھائی نے کہا کہ اتنے ٹائم تک آپ نے شارٹ کرنا ہے۔ میری عزیزوں، میرے بھائیوں، کہا کہ
कुरान आया मुस्तफा के दिल पे। एम आई राइट? इंज पुत्र गल है। अच्छा मालिक लो जी तवज्जो, थोड़ी बरीक गल होगी, हल्की सी बरीकी। परवरदिगार कुरान आया है हमारी हिदायत के लिए, ठीक है रोमा पाजी? मैं सही आख रहा पाजी, मुंह ना बोलना, सही आख रहा भाईजान? बेटा छोटे पुत्र, कुरान आया है पुत्र हमारी हिदायत के लिए। सवाल 5, 12, 14 मालिक सवाल पूछता हूं। का पूछो? का परवरदिगार ये बता, भाई तवज्जो इन्ना को बोलो राजी हां, ध्यान करना जी। मालिक ये बता कि कुरान आया है हमारी हिदायत के लिए, ताकि ऐसे बंदे बन जाइए, इंसान बन जाइए। नाजिल मोहम्मद पे क्यों हुआ? भाईजान वहदा ला शरीकी की कसम, मैं खुशामद नहीं कर रहा, तो मजमे की क्या बात है? इतनी मुश्किल बातों पर इतना प्यार दे रहे हैं मुझे, अल्लाह की कसम सलाम है आपको। फिर सुन लो सवाल, फिर सुन लो जी। सबकी मेहरबानी, मेहरबानी चाचा जी मेहरबानी, चाचा जी शुक्रिया। फिर सुनिए मालिक, जब कुरान आया हमारे लिए है, मुस्तफा पे क्यों नाजिल हुआ? लो जी मैं क्यों दा जवाब कुरान दे विचों दे लगा। रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरे जाने के बाद सीडी को ओपन कीजिए, नाखून बराबर शक निकले, जीटी रोड पे उल्टा लगा के मत्थे में गोली मारो, मेरा कत्ल माफ। शिया नहीं, मेरे सुन्नी भाई, मेरे अल हदीस भाई, मेरे हनफी भाई, मेरे देवबंदी भाई, जिनका जी चाहे उसे सीडी चेक करवाएं, उसे कहें ये शिया मौलवी पढ़ गया है, इसमें जो गलती है मुझे बताएं, मेरी जुबान काट के बहिंद के पालतू कुत्तों के सामने फेंके, मैं माफी चाहता हूं, अभी माफी देता हूं। इस तो बड़ी गल है कोई? हुण सुनो मालिक, कुरान आया हमारे लिए, मुस्तफा पे नाजिल क्यों हुआ? इतने सारे लोग बैठे हैं, 5 बंदे बोलो मैं राजी हूं, चूंकि जुमला मुश्किल है। और मैं पढ़ कुरान सूरह नहल 16वां सूरा आयत का निशान 44 44 पुत्र 40 ते 4 और सोने 40 ते 4 और मैं 44 नंबर आया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी मैं क्यों का जवाब दूंगा, हर हलाली जरूर बोले। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। हबीब हमने कुरान तुझ पे इसलिए नाजिल किया कि तू सहाबा को बता अल्लाह कहना क्या चाह रहा है। हाय हाय तेरी समझ तो सदके जावा, मालिक आपको सलामत कहा। मेरे शिया सुनी भाइयों तवज्जो, मैं जरा लेट गया था, कितने माशाल्लाह प्यारे प्यारे चेहरे बैठे हो। इधर देखो, अल्लाह कहता है हबीब हमने कुरान तुझ पे इसलिए नाजिल किया कि तू बता लोगों को कि कुरान कहना क्या चाह रहा है। हजरात ये आयत नहीं, तमाचा है उस सोच पे जिसने कहा था कुरान काफी है। वह कुरान चीख चीख के कह रहा है मैं काफी नहीं हूं। पुत्र मैं अगली गल करनी, तुम सारा बोलना है, तैयार हो? वहदहू ला शरीक की कसम, कुरान चीख के कह रहा है दुनिया वालों मैं कुरान काफी नहीं, मैं मोहताज हूं मोहम्मद के बयान का। क्या बात सुनना है, बड़ा सोना सुनाना है, बड़ी सोनी नौकरी करना है, शाबाश, तेरा मेरा साथ नहीं, अल्लाह आपको सलामत रखे। और पुत्र कुरान कह रहा है मैं मोहताज हूं बयान मुस्तफ़ा का। हो सकता है ये बच्चे हैं ये समझे चाचू समझ नहीं आई कि लो तो समझाना पुत्र, मेरे मुंह लो देखो, कुरान कह रहा है मैं मोहताज हूं मोहम्मद की। जब तक मेरा मुस्तफ़ा जुबान को हरकत ना दे पता नहीं चलता कुरान क्या कह रहा है। नतीजा लो जी हूँ टाइम चुके, अभी मेरे पास तो काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश थी, अभी मेरे सीने में आयतें काफ़ी हैं, लेकिन मैंने अपने दिए हुए वक्त के मुताबिक भाईजान को सलाम करना है, फ़ोन आ रहा है लामा साहब का, तो मैंने आपको सलाम भी करना है, इसलिए मैं अब आखिरी आयत पढ़ता हूँ और आपको सलाम करता हूँ। परवरदिगार मालिक हमने यहाँ तक नतीजा निकाला कि कुरान ताकतवर पाको पकीज़ा सच्चा सुच्चा बेऐब लारैब ते वड्डे इल्म वाला उतरा है मुस्तफ़ा के दिल पर, क्योंकि कुरान मोहताज है मेरे नबी के बयान का। मालिका हुन इको गल और दस दे। हेलो परवरदिगार एक गल और, केड़ी जी? मालिक ये बता कि तेरे नबी के बयान का तरीका क्या है, ताकि गल मुक जाए। कोई मेरे मोहतरम मजमे में ऐसा बंदा है जो हाथ खड़ा करके कहे कोई समझ नहीं आती शिया दा मौलवी की पढ़ी जाता है, कोई ऐसा है? सही समझ आ रही है? जहां से कोई गलती कुताही महसूस हो आप बोल सकते हैं, आप टोक सकते हैं, आप मुझे कह सकते हैं मौलवी साहब इतो तुसा सही नहीं पढ़िया, अल्लाह की कसम मैं नाराज नहीं, मैं नाराज हाँ तुम बोल सकते हो। तैयार हो सारे? भाजी पक्की गल है, भाजी चेक कर लीए।
हैदरी। अभी ठीक है जी, लो जी आखिरी है तो आपको सलाम करता हूँ। मालिक नतीजा ये निकला, हमने 15-20 आयतें पढ़ी कुरान की, नतीजा ये निकला कि कुरान जो लारैब है, जो सच्चा है, जो सोचा है, जो हिदायत देने आया है, ये मोहताज है पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा के बयान का। हुन मालिका एक गल और दस दे, केड़ी? मेरे अल्लाह तेरे नबी के बयान का तरीका क्या है? अल्लाह की आवाज़ है कि ज़ागा मुश्तबाई पहले इनसे पूछ, कोई नमाज हफ्ता है भाजी? नमाज हफ्ता, नमाज सोमवार, नमाज मंगल, तो चाचा जी बुध वाले तो बंदे ही चवल सी। अच्छा इसका मतलब नमाज बुध भी कोई नहीं है, नमाज जुमेरात तो यार केड़ी रह गई नमाज? नमाज मैं देखो मासूम बच्चे कहते हैं नमाज जुम्मा है। भाजी पुत्र, छोटे पुत्र, बेटा आखिरी भाई आखिरी जुमले हैं बेटा, जिस तरह हफ्ता तो आर सोमवार मंगल बुध जुमेरात जुम्मा है ना पुत्र, लफ्ज आता है ना जुम्मा पुत्र, इसी तरह बेटा कुरान की 114 सूरतों में एक सूरत का नाम भी सूरह जुम्मा है। वो जो नमाज जुम्मा पढ़ी जाती है, उस सूरह जुम्मा की दूसरी आयत में शिया सुन्नी भाइयों अल्लाह अपने नबी के बयान का तरीका सिखाता है। तो मेरा ख्याल है इस तो बाद लोड़ नहीं रहनी, तो इतने राजी रहना है। अल्लाह कहता बिस्मिल्लाह, आओ दसा जी मेरे नबी के बयान का तरीका की। अल्लाह कहता आओ तुम दसा मेरा हबीब किमें बयान करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी बअस। जब मैं पढ़ के चला लूँगा फिर लोगों का कहना है इसका पता करो ये वाकई शिया से उन्हें ना, क्यों इन्होंने भी कुरान आता है, ये पहुंचो सी पढ़ कुरान, ये किधरे झूठी मूर्ति नहीं काले कपड़े पा के आ गया, इन्होंने भी कुरान आता है। छियां भी कुरान आता है, इन्हें काफरां भी कुरान आता है। काफरां ये काफर भी कुरान नहीं, सॉरी कुरान नहीं, काफर भी कुरान पढ़ते हैं, ये छिये कुरान पढ़ते हैं। इन्ने वड्डे पंडाल चो 5 को बंदे एडी को आवाज च बोलो तो मैं राजी हाँ। मौलवी साहब हद हो गई, जिनके पीरों के घर कुरान आया उन्हें नहीं पता, जो फिका का मसला भी औरतों से पूछे वो जानते हैं कुरान क्या है। भाई खुदा आपके हाथों को सलामत रखे मेरे अजीजों मेरे भाइयों, ये प्रोपेगेंडा है, ये प्रोपेगेंडा शीयत के खिलाफ कि ये जनाब चावलों में अपना मुंडा काट के डालते हैं और शाम में गरीबा को लाइट बंद करके नशाइस्ता हरकत करते हैं। अल्लाह भला करे इस मोबाइल का जिसने हर चीज़ दिखा दी, सारे बोला थे, और इस मोबाइल ने कायनात को बता दिया है झूठे पे कल भी अल्लाह की लानत थी और झूठे पे आज भी अल्लाह की। मेरे अजीजों मेरे भाइयों ऐसा कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ना हमारा कुरान बकरी खा गई है, शुरू से खुदा जानता है, असी घोड़ा कट नया शुरू से अल्लाह जानता है, ना हमारा किसी बकरी से कोई ताल्लुक है ना किसी बकरे से कोई ताल्लुक है, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे भाइयों। ये लोग झूठ बोलते हैं कि शिया का कुरान बकरी खा ऐसा ऐसे कैसे, ये खुदा कैसे बकवास है, ऐसा कोई मसला नहीं है। मेरे अजीजों मेरे भाइयों आखिरी फिक्र सुनिए और मैं आपको सलाम करूँ। तो जो मेरे मोहतरम अजीजों कुरान कहता है मेरे नबी के बयान का तरीका सुनिए हजरात, सूरह जुमा दूसरी आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी आखिरी आयत हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सुनो मेरे मोहम्मद के बयान का तरीका ये है, ये यतलू अलैहिम आयातिही, ये कुरान की आयतों की तिलावत करता है। अगला जुमला इंजदा है भावें शिया ते भावें सुन्नी है, जेड़ा बंदा जिंदा बेदार बैठा है वो जरूर बोलेगा। अगे कुरान आता है वयुज़क्कीहिम, ये जो मेरा मुस्तफ़ा है ना, हाँ ये पलीत लोगों को पाक करता है। हाय हाय सदके जावा, ये मेरा मुस्तफ़ा युज़क्कीहिम ये पलीत लोगों को। अच्छा यार जी बड़ी दुख की गल जे करना वा यार, एक बंदे नू नबी पाक कलमा पढ़ा के पाक करन तो परसों चौथ आखे मैं मुहम्मद वर्गा बड़े पलीत का बच्चा है, ਇਹਦਾ मतलब भी फिर पाक होया ही इसलिए कि पाक करने वाले और हैं, पाक होने वाले। मेरे अजीजों जहां मेरे नबी आए थे वहां माशरे का माशरा पलीत था, 95% लोग पलीत थे, और जिथे मेरे नबी आए सन लोग पलीत सन। लोगों को पता ही नहीं था बीवी का और बहन का फर्क क्या है। ये ते सईदां दे नाने का शुक्रिया अदा करो जिन्हें दसिया आ धी जे आ भैन जे आ बीवी जे। चाचा जी अगर मेरे नबी ना आते लोगों को पता ही ना चलता, सदके जावा चाचा जी। और जो बंदे अभी तक बड़े हैरान बैठ के ऐसे मुझे गौर से देख रहे हैं ना भाई जी, तो हमें दसा भाई जी जहाँ छोटी पलीती होती है वहां नबी छोटा आता है। हाय 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 हाय, अब सोच नबियों का नबी जहां आया है वहां कितनी बड़ी पलीती होगी।
हाँ, जिसकी इस्लाह की हुसैन का नाना आया, और खुदा की कसम मैं क्या क्या खोल के बयान करूँ, आपको पता हालात ऐसे लोग आते हैं फिर जी अशिया इतों तंज कर गया इतों इंज कर गया, एक कोई गल सुन तो सलाम करा, मैं इस तो बाद एक लफ्ज़ मुसाहबत आकर सलाम कर लगा। इतनी हजरात इतनी ज्यादा पलीती थी कि एक सक्का प्यो सक्की धी को मिलने उसके कमरे में दाखिल हुआ। सक्की धी कहती है अब्बा जी यहां ना बैठना, तू मेरा बाबा है, बिस्तर बतूल के बाबा का है। हाय 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 दरी भाई, मालिक आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। मेरे अजीजों मेरे भाइयों, भाईजान कह रहे हैं कि जुलजना ने बरामद होना है, भाईजान तैयारी है? बिल्कुल जुलजना तैयार है, आएगी या सिर्फ पढ़ना है मैंने? अच्छा तैयारी है भाई, तैयार है? अच्छा चले ठीक है, मैं 2-3 लफ्ज़ कहता हूँ जनाब, अल्लाह आपकी ड्यूटियाँ कबूल फरमाए। अगर मेरे मुंह से कोई ऐसा लफ्ज़ निकला हो किसी मुसलमान भाई की दिल आज़ारी हुई हो तो मैं मादत खा हूँ, हालांकि मैंने सिर्फ कुरान ही पढ़ा है। मेरे अजीज़ों मेरे भाइयों, आप बेटा पुत्र बैठ जाओ, पुत्र छोटे बेटे बेटा बैठ, अगर पुत्र आपने जाना है तो आप चले जाएं, अभी मैं आपको इजाज़त देता हूँ, उठ के जाना तो जा सकते हैं, बैठ रहे हैं बस? अच्छा चले, मेरे भाई मुझे इजाज़त देते हैं कि 2 जुमले मुसीबत के भी हो जाएं। मेरे अजीज़ों, ये जो कायनात को पाक करने आए थे ना, जिन्होंने कायनात को बताया है कि बहू बेटी बहन का रिश्ता कितना मुअज़्ज़म है, उन्होंने दियां धीयां दियां लोगों चादर लुट लिया। इसी बात की मजलिस है, इसी बात का मुसाहिब है। चाचा जी मेरा जी चाहता है कि मैं आपको एक छोटी सी कहानी अपनी सुनाऊं ताकि मेरे भाइयों को फ़ायदा हो। बेटा जब मैं आप जितना था ना पुत्र, तो हमारे गांव में जितने ये चाचा जी बैठे हुए हैं ना, इतनी उम्र की एक सैयदजादी थी 60 साल की, मैंने उनसे कुरान पढ़ा है, ठीक है पुत्र? इसी साल वो फौत हुई हैं, इसी साल 2023 के आगाज़ में वो फौत हो गई। मेरी माँ जी ने भी उनसे कुरान पढ़ा है, मेरी माँ जी और मेरी ये मुर्शद दादी कुरान पढ़ाने वाली सैयदजादी ये एक ही साल में फौत हो गई हैं, पिछले साल। चाचा जी मेरा तरीका ये है कि जब मुहर्रम का चाँद आता है ना भाई नौजवानों, तो मैं ये कैप जो है ना अशरे के लिए नहीं लेता हूँ, अनटच बिल्कुल साफ पाक। तो फिर ये नई कैप लेके ना मैं उनके घर जाता था जिस मुर्शद दादी ने मुझे कुरान पढ़ाया है, तो वो ऐसे जूता उतार के ना वो बैठी होती थी अपनी चारपाई पे, तो मैं ये नई कैप उनकी जूती पे लगाता था, फिर अपने सर पे रखता था, क्योंकि मैंने उनसे कुरान पढ़ा है। इसका मतलब है जो लोग जहाँ से कुरान पढ़ते हैं ना उनका हया करते हैं ना, दिल मेरा करता सारे मेरे वीर हाय करो, इसे गल दे काले कपड़े ते मातम ते घोड़ा इसे गल ते होना जी कि जिन्ना घरों कुरान पढ़िए ना उन्होंने धियां मारी दाने। हाय हाय मैं बिस्मिल्लाह करना भाईजान, जिस सदके जावा सदके अल्लाह तुम्हारी हाय कबूल करे, जिस घर से कुरान पढ़ा जाए उनकी बेटियों को मारा नहीं जाता। मेरे अजीजों इसका मतलब यह है, मैंने समझा था शायद आप थके हुए हैं और आप शायद हाय नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपका मूड देख रहा हूँ, आप तो रोने के लिए तैयार बैठे हैं, फिर मैं भी कंजूसी ना करूँ और मैं 2 फिक्रे जनाब को मसायब के एहतराम में खड़े होकर सुनाता हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। हो सकता है किसी मेरे एक भाई ये थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देंगे, हो सकता है किसी एक भाई की हाय निकले, क्योंकि मेरे सुन्नी जो भाई बैठे हैं वो गौर से सुन लीजिए। सुन्नी उलमा भी कहते हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के उजड़े घर को रोना इबादत है। शिया कहते हैं मातम करना चाहिए, सुन्नी कहते हैं रोना चाहिए। सुन्नी उलमा भी अपनी किताबों में लिखते हैं कि ये सुन्नत रसूल है, चूँकि रसूल भी हुसैन को याद कर कर के रोते थे कि मेरे बेटे पे ऐसे वक्त आएंगे। एक मेहरबानी करा जे जिन्हें बच्चे बैठे जिन्हें मेरे नौजवान, मेरा वीर कोई मेरा वीर ये ना आखे कि मैं रोवांगा तो मेरा मुँह डिंगा होएगा तो नाल दा बंदा मजाक करेगा। मैंने कुरान की अजमत की कसमें अगर रोने की कीमत पूछनी है तो सकीना से पूछ, हाय बाबा कहती थी बाप का कातिल तमाचे मारता था। मैं सदके जावा बिस्मिल्लाह कोशिश कीजिए पुत्र, छोटे पुत्र हर बंदा पुत्र कोशिश कर। बेटा आपको मैं अभी कह रहा हूँ कि अभी से हाय करने की कोशिश पुत्र, अपने शौक डालो और आदत डालो पुत्र। असा सारी जिंदगी रोना है तो कब्र तक रोना है पुत्र, उजड़ गई है ज़हरा। ठीक है बेटा, हाँ मेहरबानी। जितने भाई मेरे खड़े हैं या बैठे हैं आपने हाय करनी है ताकि मैं फिक्रा कह सकूँ। मौला आपको सलामत रखे। कहा कि 12वें इमाम का एक फिक्रा, एक चौथे इमाम का, एक 5वें इमाम का, 3 इमामों के फिक्रे मैं मुसाहिब की आपको सुनाता हूँ। अगर आपने सुन लिया तो फिर आगे बढ़ूंगा, वरना सलाम करूंगा। चाचा जी मेरा 12वां इमाम फरमाता है, नौजवानों हाय वाजिब है, अस्सलामु अला जद्दयल्लज़ी साकत अन फरसही अला खद्दिहिल ऐमन। 12वां मौला कहता है मेरा सलाम सकीना के गरीब बाबा पे। हाय मैं सदके जावा, साकत अन फरसही अला खद्दिहिल ऐमन, जो दौड़ते हुए घोड़े से दाएं रुखसार के बल गिरा था।
ये सदके जावा मौला भाई थोड़ा पुरसा गुरु करे, आप तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। ये तेरे 12वें इमाम का सलाम है। अब तेरे चौथे मौला जेड़ा सक्का पुत्र है, चौथा मौला तेरा बाजारों का मुहारी सजाद खून रोने वाला भाई गुलाम मुस्तफा जी जुबला खां भाई जान मेरा पाजी मेरे कोल जो बैठे हो हाय करे जे। मेरा चौथा मौला फरमाता है दुनिया में कोई कत्ल का ऐसा तरीका नहीं बचा जो मेरे बाबा पे ना आजमाया गया हो। कि सदके जावा किसी ने मेरे बाबा को खंजरों से मारा, किसी ने तीरों से मारा, किसी ने नेज़ों से मारा, किसी ने पत्थरों से मारा। तो ये सारे वीर मेरे हाय करो इन्हें बच्चों अगर मातम करो तो फिक्र का पाइतन की कसम है जिसके हाथ में हथियार था उसने हुसैन को थोड़ा मारा है, जिसके हाथ खाली थे उसने हुसैन को ज्यादा मारा है। मैं बिस्मिल्लाह करा। ये तेरे चौथे मौला का। अब पांचवें मौला का फरमान सुन। तेरा पांचवा मौला बाकिरुल उलूम मौला रो के कहता है 1.25 लाख हो या 9 लाख हो, मौला फरमाता है करबला में एक सिपाही ऐसा नहीं था जिसके साथ हाथ हो और उसने मेरे दादे को मारा ना हो। अम्मा फिजा जी मौला फरमाया अम्मा मेरा घोड़ा कहाँ है। मुझे भाई कह रहे थे कि शबीर दुल्हन आएगी। अम्मा भाईजान जब मैं आशा बोलूं से थोड़ा सा बढ़ा दिया करें। अम्मा मेरा घोड़ा कहाँ है। इधर देखा जाए इधर से जनाबे फिजा घोड़ा लेके आई। इंज मेरे मौला इंज वेख्या उच्चा रोया हुसैन। मैं आराम ना पढ़िया तुसा चुप करके सुनिया कुरान दी कसम भाई गुलाम मुस्तफा जी हुसैन रोया। एक बार मैंने पूछो क्यों रो के हाय हाय चाचा जी रो के हुसैन कहता है अम्मा फिजा जब मेरा रहा कोई नहीं मेरे घोड़े को तैयार किसने किया है। अम्मा ना मेरा अकबर रहा ना मेरा कासिम रहा ना मेरा गाजी रहा। मैं बिस्मिल्लाह करा अम्मा मेरे घोड़े को तैयार किसने किया। असगर की माँ आपने नहीं मौला। अकबर की माँ आपने नहीं मौला। कासिम की माँ आपने नहीं मौला। मेरी मलका शाम बहन ज़ैनब आपने नहीं मौला। मेरी उजड़ी बेवा बेटी कुबरा आपने नहीं बाबा। फरमाया फिर मैं हुज्जत खुदा वक्त का वली और इमाम बन के पूछता हूँ मुझे बताया जाए मेरा घोड़ा मेरी सवारी तैयार किसने की। जेडे बैठे और वहां से उच्ची हाय कर दे। एक मरतबा जुड़ते हुए 2 हाथ आगे आए रो के बीबी कहते मौला ये काम गाजी की बहन रुकैया ने किया है। मैं बिस्मिल्लाह करा मौला ये काम रुकैया ने किया। फरमाया रुकैया जैसे मेरी ज़ैनब बहन है वैसे मेरी तू बहन है। मेरे प्यो दिए थे ये तुझे तो नहीं पता था कि ये घोड़े तैयार कैसे किए जाते हैं। कहा मौला शब अशूर पुत्र जगराते वाली रात पुत्र नामी दी रात जो शिया सारे जाग के सारी रात मातम कर देने ते अली अकबर की अजान सुन के फिर कराना होता है पुत्र फिर वो रात बीबी कहती है बाबा मौला जब आप अपने असहाब को खुतबा दे रहे थे ना तो थोड़ा टाइम बचा के ना अब्बास मेरे खैमे में आया था। मेरा सक्का वीर अब्बास मेरे खैमे में आया था और मुझे मैं देखा लगा जी कितने कितने शिया बैठे हैं और मुझे आग कहता है रुकैया तू जानती है ना हम कनीज की औलाद है वो जहरा का बेटा है। रुकैया जब से मैं गाजी ने होश संभाला है ना मैंने अपने मौला सदके जावा मैंने अपने मौला को कभी सवारी तैयार नहीं करने दी। हमेशा मैं नौकरी करता हूँ। कल ना मैं रहूंगा ना अकबर होगा ना कासिम होगा कोई नहीं होगा इसलिए मैं तेरे सामने घोड़ा तैयार करता हूँ तू गौर से देखती जा। फिर जब हम नहीं होंगे तो मेरे मौला को घोड़ा तैयार करके देना। मैं आराम ना पड़िया तुम आराम ना बह के सुनिया। उच्चा रो के हुसैन कहता है तुझ पे भी सलाम तेरी वफाओं पे भी सलाम। हाय मैं बिस्मिल्लाह तुझ पे भी सलाम चाचा जी तेरी वफाओं पे भी सलाम। नौजवान भाई जुमला सुनेंगे। अच्छा खुदा की कसम ये कह के मेरे मौला ने पता क्या किया घोड़े की तरफ देखा इधर देखा जी फखर्रकहू व मर्रकहू। मेरे इमाम ने जगह जगह से अपनी कमीज को फाड़ा। हाय कर दो सारे मेरे मौला अपनी कमीज इंज बनाइए जिवें जवान नू कफन देईदा है क्योंकि सकीना का बाबा जानता है ना मेरे बाद मुझे कोई कफन पहनाने वाला नहीं होगा। मैं सदके जावा ये कह के मेरे मौला जुलजना पे सवार जुलजना तो उसका बाद में नाम पड़ा है मुर्तजिज पे सवार हुए। जुलजना का मतलब है परों वाला। तीर इतने लगे थे कि इसका नाम जुलजना पड़ गया वरना असल पुत्र इसका नाम जुलजना नहीं है असल का नाम है मुर्तजिज। मुर्तजिज के ऊपर मेरे मौला हुसैन बैठे यूं लगामें हटाई और इधर देखिए जब अरबी जुबान में लफ्ज़ अलैका पहले कहा जाए ना अलैका पहले सलाम में अलैका इसका मतलब होता है मेरा आखिरी सलाम। कौन सुना दे इमाम फरमाया या ज़ैनबो व या उम्मा कुलसूम व या रुकैया व या सकीना अलैकुन्ना मिन्नी सलाम नबी ज़ादियो गरीब का आखिरी सलाम। सैयदादियों चाचा जी गरीब का आखिरी सलाम हो। ये कह के मेरे मौला ने लगामों को हरकत दी। एक कदम उठा के ना एक कदम उठ के घोड़ा खलो गया है। जब घोड़ा रुका है ना मेरे मौला फरमाते हैं तू भी तन्हा समझ के गरीब का साथ छोड़ गया।
अपनी जुबान में कहता है मौला मुझे अभी तक याद है तेरी माँ चादर ततहीर में मुझे दाना खिलाती थी। मौला मेरी वफा में कमी नहीं आई। जिन्नियां ਧੀਆਂ मेरियां बैठियां हो गई ਤੁਹਾਡੀ हाय हुण वाजिब भी हुण मेरियां ਧੀਆਂ दी जुमला है मेरियां मामा दी मर्जी मेरियां भैणां दी मर्जी जिन्नियां मेरियां ਧੀਆਂ हो मेरी भी दो बेटियां जी जितनी मेरी बेटियों के उम्र में बच्चियां बैठियां ना आप पे वाजिब है पुत्र जिथे भी बैठियां हो तुसा हाय करनी है। घोड़ा अपनी जुबान में कहता है मौला मैं मजबूर हूँ जरा मेरे सुमों की तरफ देख। जैसे हुसैन ने यूं देखा ना भाईजान 4 साल की सैयदजादी घोड़े के सुम पकड़ के कह रही थी ना ले जा मैं सुबह की देख रही हूँ जो जाता है वो लौट के नहीं आता। मैं अपने बाबे के सीने के सिवा सोने की आती नजीब बिस्मिल्लाह करा मैं कितने जावांगी सदके जावा मैं अपने बाबे के सिवा सो नहीं सकती। ये देख के मेरे मौला हुसैन घोड़े से नीचे उतरे। मेरे अजीजों मेरे भाइयों मेरे मौला हुसैन ने सकीना को आखिरी मर्तबा ऐसे पकड़ा जैसे कारी कुरान पकड़ता है। और तियां लियो ए इंज करके ना मेरे मौला ने अपने धी नूं साथ दी धी नूं इंज आखिरी बारी अपने नाल लाया ए पेशानी चूमी। अब मेरे मौला आखिरी मरतबा बेटी से बात कर रहे हैं। मैनू नहीं पता तुसा किवें सुनना है जो मैं लफ्ज़ पढ़िया सी ना मैं कल्ले ही बह के घर हाय हाय करके रोया सा। हो सकता है तुहाडी भी कैफियत उंज होई है क्योंकि ये तौफीक बीबी पाक देने ना बीबी पाक की तौफीक होए तो मुँह चो हाय निकल दी है आँखां फिकरा। जनाब सकीना कहती हैं बाबा आप कहाँ जा रहे हैं। फरमाया सकीना इससे बेहतर जहान जिथे मैं चले हूँ इस तो बेहतर है करोगे सारे हाय उच्चा रो के सैयदादी कहती हैं बाबा जहाँ तू जा रहा है वहाँ पानी मिलता है। बाबा मुझे प्यास खा गई बाबा मेरा असगर भी प्यास से मर जी सड़के जावा बाबा मुझे प्यास मेरा जिगर प्यास खा गई बाबा वहाँ पानी मिलता है। रो के बेटा ये तार को ना छड़िए रो के पाक हुसैन कहते हैं ए हौज़े कौसर की मालकन तेरी दादी है साकी कौसर तेरा दादा अली है। ये कह के मौला कहते हैं सकीना और धियां ले आखिरी फिक्र आखिर लगा जी बाबा। फरमाया मेरा पुत्र ये बता तू मेरा बेटा है कि बेटी है। बाबा मैं तेरी बेटी हूँ। मेरा पुत्र तेरी कितने साल की है। कहा बाबा मैं 4 साल की हूँ। जिन्होंने घर धियां ने तुहाडी हाय हुसैन दी धी ते निकलनी चाहिए है। इमाम फरमाया कितने साल की बाबा 4 की। इमाम फरमाया जरा सोच आखिरी बारी प्यो कहंदा है इमाम फरमाया जरा सोच के बता 4 साल में कोई ऐसा लम्हा कभी आया है कि तूने कुछ मांगा हो और मैंने ना दिया हो। रो कहते नहीं वे बाबला इंज कभी नहीं होया मैं जो मांगती हूँ तू अता करता है बेशक जन्नत से भी मंगवाना पड़े। हुसैन रो के कहता है फिर आखिरी मर्तबा कोई चीज मांगू देगी। 4 कदम पीछे हट के कहती है बेशक छोटी हूँ लेकिन वक्त की फातिमा ज़हरा हूँ। मांग वे मेरा लाज़ेदा मेहमान बाबा बाबा मुझे बता क्या चाहिए। उच्चा रो के हुसैन कहता है ख्याल करना मेरी बहनों को तंग न करना वो बड़ी मजबूर होगी। सदके जमा अपने भाई का ख्याल रखना उसका जिगर फट चुका है। मेरा गैरत का मरीज सजा सदके जावा जी जो खलो के रोगे पे जी अल्लाह करे अपने गम से कभी ना रो जी जो सखी हुसैन को रो रहे हैं। मैंने आखिरी कहना है कोशिश कीजिए हर भाई मातम करे और हाय जरूर करे और साथ में ये दुआ कीजिए अल्लाह बानी फर्श अल्लाह की इस मेहनत को कबूल फरमाए। जिन्ने असी आए हैं मेरे समेत अल्लाह साढ़ा सारे नौकरों के आज जिन्ने असी सारे नौकर बैठे हैं इमाम हुसैन दे अल्लाह हम सब के गुनाह माफ फरमाए। ये जितनी मेरी माएँ बहनें हैं अल्लाह सबकी इज्जतें पर्दे चादरें महफूज फरमाए। मैं एक जुमला और रखना जरा रल के सारे कोशिश करें जी हर मेरा वीर शिया भावें सुन्नी वो हाय जरूर करे। इमाम फरमाया सकीना अल्लाह हाफिज। ये जरा सोचो वाला जिहदे जिहदे घर धीए आखिरी वारी धी नूं पक्का पता है कि मेरे प्यो नहीं बचना ते प्यो नूं पक्का पता है कि मैं नहीं रहना ते प्यो नूं ये भी पता है मेरे बाद इहनूं लोकां बड़ा मारना। मैं बिस्मिल्लाह करा क्या कैफियत होगी जरा मंदिर को सामने देखने में लाइए क्या सिचुएशन होगी क्या कंडीशन होगी मेरे अजीजों। ये कह के मेरे मौला फिर घोड़े पे सवार हुए। फरमाया गरीब ज़हरा का आखिरी सलाम हो। ये कह के हुसैन ने घोड़ा चलाया। अभी आधा घोड़ा खैमे से बाहर था आधा अंदर था। मेरे मौला ने उस तरफ देखा जिस तरफ 72 शुहदा की लाशें पड़े हुए थे और मेरे मुर्शद फरमाते हैं या फुरसान अल हिजा ऐ मेरे शाह सवारो कहाँ चले गए। कि मतलब किस वाला मैनू कल्याण छड़ के कितने टुर गए हो। यानी मतलब ये था कि पहले जब मैं घोड़े पे सवार होता था इधर अब्बास था इधर अकबर था इधर सजाद होता था इधर कासिम है कहाँ गए। ऐना ऐना अब्बास ऐना ऐना अली अकबर ऐना ऐना कासिम इब्न हसन। ये मेरे मौला पुकार रहे थे मेरे वेखा जे जिन्हों की अम्मा शिया ना पुराने शिया तो समझ आनी मैं की पहना। अभी मौला ये कह रहे थे कि पीछे देखा तो एक बीबी है जो काले बुरके में खड़ी है। इमाम फरमाते हैं आप कौन है। और मैं मौला मैं कासिम की माँ हूँ
भाभी अम्मा आप क्यों दरवाजे पे आई? कहा मौला जब से आपने लाशों को पुकारा है ना, हर लाश एक जगह से उठ रही है। मेरा कासम कभी वहां से कभी वहां से कभी वहां से, हर टुकड़े से आवाज आ रही है, अम्मा मेरा चचा अकेला रह गया, अम्मा मेरा चचा गरीब हो गया, जी बिस्मिल्लाह करा, जी बिस्मिल्लाह करा। इतने में हसन की बेवा अंदर गई और मलका शाम, जिस सैयदजादी के ये दिन चल रहे हैं, जो अभी बाजारों में पत्थर खा रही है, मलका शाम अली की बड़ी बेटी, वो बीबी पाक सदर मकाम पे आई और कहा हुसैन जी बहन लो जी एक बार जरा आराम ना आवाज रोक के सार रोक के सुना जी, फिर बेशक हाय करे जी। हुसैन मैंने तेरे बाद शाम जाना है। फरमाया हाँ बहन अगर तू ना जाए नाने की मेहनत नहीं बचती। हुसैन मैंने सुना ये मेरिया भैन जिन्हों दे अल्लाह पेके थोड़े सलामत रखे, ये मेरिया भैनों से जुमला है। कहा कि हुसैन मैंने सुना है कि शाम की औरतें बड़ी तानेबाज हैं। फरमाया हाँ तो मैंने वहां जाना है। बंदे हाथों से फरमाया हाँ। बहन कहना क्या चाह रही है? उच्चा रो के बीबी कहती है मैंने जाना है शाम, एक हमला तो करके दिखा, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे बाजार में औरतें कहें ज़ैनब तेरे भाइयों को लड़ना नहीं आता था। मैं जुमला आग छड़िया तू सुन छड़िया। उच्चा रो के हुसैन कहता है अब हुक्म दे रही है जब मेरा अकबर मारा गया, अब हुक्म दे रही है जब मेरा गाजी मारा सदके जावा, जब मेरा गाजी नहीं रहा, जब मेरा असगर नहीं रहा, जब मेरा कासिम नहीं रहा। ये कह के अपनी माँ ज़हरा की तरह इज्जत करते थे हुसैन मौला अपनी बहन की। ये कह के मेरे मौला ने यूं तलवार को नियाम से निकाला और यूं कर कहते हैं मेरे मौला कहते हैं आओ अब उसकी जंग देखो, गाजी की मौत जिसकी कमर तोड़ गई। सदके जमा आओ अब उसकी जंग देखो, अकबर की बर्छी जिसकी आंखों का नूर खत्म कर गई। मेरे अजीजों हुसैन ने ऐसा हमला किया, फौजें मैदान से भागी। जब फौजें सारा मैदान छोड़ के भागी है ना, उधर से आवाज आई या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिक राज़ियतन मर्ज़िया, जिसका तर्जुमा मफ़हूमी ये बनता है हुसैन ये बाप की शजाअत थी, अब माँ का सब्र दिखा। मेरे अजीजों ये सुनते ही हुसैन ने तलवार को सदके जावा तलवार को यूं ने हमें वापस रखा और फरमाया रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह के हुसैन ने घोड़ा वहां मोड़ा जहां 18 साल का जवान कड़ियल अकबर का लाशा था। घोड़े पे बैठ के चाचा जी सदके जावा हुसैन कहता है मेरा पुत्रा मौसम तो मेरा था, चला तू गया, अकबर तुझ जैसे बेटे बर्छियों के लिए नहीं होते। हुसैन ये बात कर रहा था, सामने एक कुत्ते ने इतनी जोर से तीर मारा जो शब्बीर की पेशानी पे लगा। हुसैन की दोनों बाहें घोड़े की गर्दन में आ गई। एक हरामी है जिसका नाम है सनान, इसने जोर से नेजा हुसैन की पसली में ऐसा मारा कि ये पसली चीर के वो नेजा इस तरफ से पार हुआ। शिया भरा जिथे जिथे वो हाय करा जे उच्चा रो के हुसैन कहता है अम्मा ज़हरा मेरी भी पसलियां टूट गई। मैं बिस्मिल्लाह करा अम्मा सदके जावा, अम्मा मेरी भी सदके जावा, अम्मा मेरी भी पसलियां टूट गई। अल्लाह जाने मेरे पढ़ने के बाद कोई ना कोई आप में से भाई कहेगा यार जाएगा मुझे तो भाई बड़ा सख्त जुमला पड़िया इन मैं फोन करके रखना कोई जुमला ना पड़ी, मैं पहलो माफी मांगना पिया। एक बार जेडे भरा पीछे खलोते हो मातमी सारे वो भी ते जेडे बैठे हो एक बार उच्ची बोल के दस्या जे तुसा ये जुमला जाकना को सुनिया कदी केड़ा? ए बीबी ज़हरा तेरी अपनी किस्मत, तेरे 2 ही बेटे थे, एक के जनाजे पर तीर थे, दूसरे का जनाजा तीरों ए देखा जी ए तीर में ये जनाजा। इसका मतलब है हुसैन मौला के बदन पे 1 इंच का फासला नहीं था जहां तीरों में तीर ना हो तो मैं इको ही तीर पढ़ना है। हालांकि मेरे मौला का पूरा लाशा तीरों पर था पर मैं इको ही पढ़ना है। जो इमाम हुसैन नूं नेज़ा वजा ना तो मेरे मौला क्या या उम्मा ए देखा जी ਤੁਹਾਨੂੰ कुरान का वास्ता है सारे हाय करा दे, शिया मातम ते सुन्नी हाय जरूर करा दे। जब हुसैन को नेजा लगा ना तो घोड़े से गिर के हुए हुसैन कहते हैं या उम्मा हाय मेरी अम्मा। हुसैन ने माँ कहने के लिए मुंह खोला, एक जालिम ने मुंह के अंदर तीर मारा। आवाज आई हाय अब्बास, अब्बास ही सदके जावा गाजी मैं तन्हा रह गया, अब्बास मैं अकेला रह गया। एक बीबी है जिसके हाथ पहलू पे है, वो रो रो के कह रही थी और मैंने चकिया पीस के पाला है, लोगों इसका एक बाल टूट जाता, माँ सारी रात रोती रहती। मातमे हुसैन